Hello friends, welcome to Developing Success Classes. My name is Rahi Mehta and I am conducting your current affair lecture series. As you know that in past videos we have discussed many important topics related to the current affair, and current affair as such is very important for each and every government exam for which you are preparing, be it UPSC, be it State Public Service Commission exam, be it SSC, CGL. हर एक एग्जाम के अंदर करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए आपकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए वी आर कंडक्टिंग दिस लेक्चर सीरीज, एंड आज की इस वीडियो के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एक्जियम 4 मिशन। सो एज यू नो दैट इन एंटायर वर्ल्ड स्पेस सेक्टर nowadays it is growing at a very fast pace. It is growing enormously. पहले क्या होता था कि स्पेस सेक्टर में रिसर्च इट वाज कन्फाइंड टू द गवर्नमेंट सेक्टर ओनली. Only government agencies were performing research, they were creating infrastructure, they were launching satellites and rockets in outer space. But now this field has also seen the emergence of private players as well, and many private players are trying to engage, are trying to do very well in this field, in space sector specifically. And इसी चीज को ध्यान में रखते हुए we will discuss this topic which is related to the space sector, which is related to the private industries which are trying to perform well in space sector. इसके साथ साथ we will also discuss about International Space Station in this video. We will also discuss about India's Gaganyaan mission, and ऐसी ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, करंट अफेयर को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले बेसिक जानते हैं अबाउट एक्जियम 4 मिशन। सो एक्जियम मिशन 4 और AX4 इट इज अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो दो कीवर्ड हमारे पास इसमें निकल कर आए पहली लाइन के अंदर। फर्स्ट कीवर्ड इज प्राइवेट स्पेस फ्लाइट, सेकेंड कीवर्ड इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वीडियो के एंड में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला दैट इन टुडेज वर्ल्ड private players are trying to enter space sector. That is why a company whose name is Axiom Space, it is a private company, it is based in America, it is conducting a private space flight to the international space station. पहले ये space flights जो थी या तो नासा या फिर रशिया रोसकोमोस जो उनकी स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा ही कंडक्ट की जाती थी, बट नाउ अ प्राइवेट कंपनी इज ट्राइंग टू लॉन्च अ स्पेस फ्लाइट व्हिच विल गो एंड अटैच विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. It is scheduled to launch in 2024 and it will continue the company's pioneering effort to establish a sustainable human presence in low Earth orbit. तीसरा और चौथा कीवर्ड भी हमारे लिए इस लास्ट लाइन में निकल कर आया। तीसरा कीवर्ड है सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस एंड चौथा कीवर्ड हमारे लिए निकल कर आया लो अर्थ ऑर्बिट. What do you mean by sustainable human presence in space? It means they are trying to, Axiom Space is trying to, it is aiming towards that they will establish a space laboratory where human will station and they will conduct many experiments, many research related to the various fields. It is a very pioneering effort which is being led by the Axiom Space, and it this laboratory will be stationed in low earth orbit. There are various kinds of orbit जहां पर satellites को स्टेशन किया जाता है, like low earth orbit, medium earth orbit, higher earth orbit, polar earth orbit. There are many kinds of orbit. In this video we will discuss what are low earth orbits only. Next, why it is in news? एक्जियम 4 मिशन के बारे में तो जान लिया, बट ये न्यूज में क्यों आया? ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे देश का मान सम्मान है, जिसने हमारे देश को स्पेस रिसर्च के अंदर काफी तरक्की हासिल करवा कर दी, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हैज शॉर्टलिस्टेड 2 of its 4 trained Gaganyaan astronauts for the Axiom 4 mission to the International Space Station in collaboration with the United States agency which is known as NASA. It means ISRO is planning a space flight mission, which is the name of the mission is Gaganyaan mission. उस गगनयान मिशन के लिए इसरो ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया था। उसमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स जो है इसरो अब इस एक्जियम 4 मिशन के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज रहा है विद द कोलैबोरेशन ऑफ नासा। नासा की मदद से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनको ट्रेन भी किया जाएगा और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे, एक्जियम 4 मिशन के तहत जाएंगे, वहां पर जाकर स्पेस रिसर्च करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे, ये उनका काम रहेगा। एंड दे विल रिमेन इन स्पेस फॉर 14 days एंड देन दे विल कम बैक टू अर्थ। आगे व्हाट इज द एक्जियम 4 मिशन, दोबारा थोड़ा सा और इसके बारे में जान ले।
NASA and Axiom Space, an American private funded space infrastructure developer, signed an order for the fourth private astronaut mission to the ISS. It means फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मिशन लॉन्च हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं. नाउ नासा एंड एक्सियम स्पेस ने आपस में एग्रीमेंट करके फोर्थ मिशन को लॉन्च करने की प्लानिंग करी है और इसको अगस्त 2024 के अंदर लॉन्च किया जाएगा. इसी महीने इसको लॉन्च किया जाएगा. कहां से लॉन्च किया जाएगा? कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि यूएस के फ्लोरिडा स्टेट के अंदर मौजूद है, वहां से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा. मिशन एम्स टू डॉक विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर ए 14-day ड्यूरेशन. 14 दिनों के लिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ा रहेगा. देन दे विल कम बैक टू अर्थ. एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. नासा ट्रेनिंग देगा, इंटरनेशनल पार्टनर्स ट्रेनिंग देंगे, स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी ट्रेनिंग देगी और इसके साथ साथ इंडो यूएस स्पेस कोऑपरेशन गोल्स जो हैं वो इससे अचीव भी हो सकेंगे. इससे इंडियन यूएस स्पेस कोऑपरेशन और आगे भी बढ़ सकेगी. नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन? अगर हम ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में एक और कीवर्ड हमारे सामने आया था जिसको हम ध्यान से, जिसके ऊपर हमने अभी बात नहीं करी. इट इज ऑपरेटेड बाय एक्सियम स्पेस एंड यूजेस अ स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट. यानी कि ये जो एक्सियम 4 मिशन है ये स्पेस एक्स कंपनी के स्पेस क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करके अपने मिशन को लॉन्च करेंगे. सो दैट इज व्हाई ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है क्या. ये क्या है? ये एक स्पेसक्राफ्ट है, ये एक लॉन्चिंग स्पेसक्राफ्ट है, ये एक लॉन्चर है, ये एक रॉकेट है जिसके ऊपर आप स्पेसक्राफ्ट को अटैच करते हो और उसको स्पेस के अंदर लॉन्च कर देते हो. ये किसने डेवलप किया? ये स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी ने डेवलप किया. ये कंपनी भी क्या है? ये भी यूएसए की कंपनी है. ये भी एक प्राइवेट फंडेड कंपनी है. दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिनका नाम है एलोन मस्क, उनके द्वारा ऑपरेट की जा रही ये स्पेसएक्स कंपनी का स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन लॉन्चर जो है वो एक्सियम 4 मिशन में यूज किया जाएगा. उनके स्पेसक्राफ्ट को इस रॉकेट लॉन्चर के साथ अटैच करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा जाएगा और बाद में उसको रिकवर करके वापस भी अर्थ के ऊपर लेकर आया जाएगा. स्पेसएक्स क्या है? स्पेसएक्स became the first private company to launch people, which means human space flight into orbit, a feat achieved by US, Russia and China. यानी कि आज से पहले सिर्फ 3 कंट्रीज ही थी, यानी कि यूएसए, रशिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज ही थी जिन्होंने स्पेस के अंदर ह्यूमंस को लॉन्च करने में सक्सेस हासिल करी थी. स्पेस एक्स पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनता है जिसने स्पेस में ह्यूमंस को लॉन्च किया, स्पेस फ्लाइट को लॉन्च किया और उसमें सक्सेस भी हासिल करी. एंड जो ये क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है ये ड्रैगन 2 मॉड्यूल का पार्ट है और ये एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है. यानी कि इस लॉन्चर से इसको लॉन्च करने के बाद इसको अर्थ पर रिकवर कर लिया जाता है, इसको वापस ले आया जाता है, इसको सही सलामत वापस अर्थ के ऊपर स्टेशन करके दोबारा जरूरत पड़ने पर लॉन्च भी किया जा सकता है और लॉन्च किया भी जाता है. इससे पहले जितने भी रॉकेट लॉन्चर हुआ करते थे दे वर नॉट रीयूजेबल. उनका एक काम था कि आप उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया और उसके बाद वो समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर गिर जाया करते थे. बट दिस स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन रॉकेट लॉन्चर ये ओशियन में नहीं गिरता है. इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये वापस अर्थ के ऊपर रिकवर किया जा सके. इट इज अ वेरी 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 टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फीट. ऑल्दो स्पेसएक्स ने इसको अचीव करने में काफी ज्यादा मेहनत करी, काफी ज्यादा रॉकेट्स जो थे वो उनके फेल हुए, डिस्ट्रॉय हुए, बट एट द एंड they have been able to develop a technology to develop a spacecraft which is reusable in nature. Next, what is low earth orbit? Low earth orbit extends nearly 200 kilometer to 2000 kilometer above the earth's surface, and satellites in low earth orbit complete an orbit around earth in about 90 to 120 minutes. These orbits are relatively near earth. अर्थ से 200 से 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर जो ऑर्बिट है जिसके अंदर जिसके अंदर सैटेलाइट्स जो है वो रिवॉल्व करती हैं अर्थ के अराउंड, दैट इज नोन एज लो अर्थ ऑर्बिट. ये रिलेटिवली जो ऑर्बिट है ये स्मॉल ऑर्बिट है एंड इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट स्टेशन होती हैं वो अर्थ को 90 से 120 मिनट्स के अंदर पूरे अर्थ का एक चक्कर जो है वो लगा लेती हैं. एंड दिस मेक्स देम परफेक्ट फॉर हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग. अगर कोई सैटेलाइट when a satellite is far away from the earth, then उसके लिए अर्थ की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग करना is very difficult. That is why those satellites which are used
to capture high resolution images of Earth. They are stationed in low Earth orbit. And we have two examples of satellites which are in low Earth orbit. First, International Space Station, it is in lower Earth orbit, and the Hubble Space Telescope as well is in the lower Earth orbit of the Earth. Next, mission objectives of the Axiom-4. What are the mission objectives? First is commercial space endeavor. When a private company will achieve such a feat, other private players will also try to enter this market, and commercial utilization of these space endeavors will be possible because of it. Second, international collaboration, like India and USA, India and Axiom Space, India and SpaceX, they are collaborating with each other. Likewise, many other private companies, many other countries will contribute, will collaborate with each other. It will enhance international collaboration in space sector. Plus, it will also help in research and development because many microbiology, microgravity, and Earth observatory experiments will be conducted in this mission, which will help in research and development of the space sector as well as many other sciences as well. And what are the features of Axiom-4 mission? We have discussed this already, but still एक बार हम दोबारा नजर बना लेते हैं. ये 14 डेज के लिए स्पेस के अंदर रहेगा. फर्स्ट फीचर है ये Axiom-4 का. इसके अलावा it will conduct scientific experiment, it will perform technology demonstrations, and it will engage in the educational outreach. And its first commercial space station जो Axiom Space फ्यूचर में बिल्ड करना चाहता है, फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन, उसकी तरफ ये बढ़ता हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है. These are the features of Axiom-4 mission. Next, what is International Space Station? So first of all, International Space Station is a modular space station which is situated in lower Earth orbit, and it was launched in 1998. It is a modular station. It means it can allow modules to be added or to be removed from the existing structure. यानी कि एक स्ट्रक्चर आपने बिल्ड कर दिया, उस स्ट्रक्चर के साथ एक नया स्ट्रक्चर ऐड भी किया जा सकता है या उस स्ट्रक्चर को रिमूव भी किया जा सकता है. टाइम के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बड़ा होता गया, और अगर उसका कोई पार्ट खराब हो जाता है, उसको रिकवर करना है या रिप्लेस करना है, तो वो करना भी पॉसिबल है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज ए मॉड्यूलर स्टेशन. That is one of the important feature of International Space Station, and it is a very large observatory. It is a very large laboratory which is situated in lower Earth orbit, and it conduct many experiments in microgravity. And जितनी भी हमारी आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं which have gained a lot of things because of the research being done in the International Space Station. जिनके बारे में हमें अभी पता भी नहीं होगा. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो बनाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए गए थे, बट वो इतने ज्यादा फायदेमंद हुए कि उनको मार्केट के अंदर आम जनता की भलाई के लिए भी लॉन्च कर दिया गया. एंड लास्ट हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएसएस. Objectives of ISS are moreover same with the Axiom-4 mission, to conduct scientific research, and it is largest artificial object in the space. It roughly revolve around Earth in 93 minutes for one time, and around पूरी अर्थ का चक्कर ये 93 मिनट में लगा लेता है, और पूरी अर्थ को 15.5 बार लगभग एक दिन में ये कवर कर लेता है. एंड लास्ट, कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज हैं इसके अंदर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कौन कौन मिलकर चलाता है? नासा यूएसए की, रोस्कोमोस रशिया की, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की, कैनेडियन स्पेस एजेंसी कनाडा की. ये 5 कंट्रीज, ये 5 स्पेस एजेंसीज जो है वो मिलकर चलाती हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को. एंड ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट, जिसको आरओएस के नाम से जानते हैं, इट इज ऑपरेटेड बाय रशिया. एंड सेकंड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट, which is operated by USA and other 4 countries as well. And 2 पार्ट है, एक रशिया के द्वारा ऑपरेट और एक बाकी यूएसए द्वारा लेड, एंड बाकी सभी कंट्रीज के द्वारा ऑपरेट. वो बाकी कंट्रीज कौन सी हैं? ये 4 कंट्रीज, पहली यूएसए, दूसरी जापान, फिर यूरोप, फिर कनाडा, ये मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मेंटेन करती हैं. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट Axiom-4 मिशन. इन दिस वीडियो हमने इस वीडियो में हमने Axiom-4 मिशन के बारे में, स्पेसएक्स के बारे में, हमने नासा के और बाकी कई सारी स्पेस एजेंसीज के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर जानी.
इस ऐसी वीडियोस देखने के लिए, करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए, अपनी तैयारी को अच्छे से चलाए रखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को भी सजेस्ट करें और अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।